One myth about women that you want to change today. that they are emotional fools. Women जो होती हैं उनका खुद का चॉइस होता है कि मुझे काम नहीं करना. I want to sit down and I want to take care of the house. घर भी एक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है. कुछ चैलेंजेस आपने जरूर फेस करे होंगे. You were collecting them together. Women were talented. Correct. लेकिन उनको खुद नहीं पता था कि हम टैलेंटेड हैं. डे 1 से तो हमने प्रॉफिट की बात सोची ही नहीं. द बिजनेस स्टार्टेड जस्ट विद अ थॉट कि हम लोगों को इन विमेन को हेल्प करना. सेल्फ डाउट बहुत होता है. आपने इतना ज्यादा बिजनेस बढ़ाया. वर देयर एनी मोमेंट्स वेयर यू फेल्ट लो? यस, many times. I am not any exception. Is it important? अगर एक मैन का साथ हो तो does it help the women or no? मैन के लिए एक बात कह सकते हैं, विमेन को रोको मत. जब इन औरतों ने कमाना चालू किया तो डू यू थिंक कि उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई उनकी फैमिली में? छोटा सा अपना लिपस्टिक ला रही है और बोल रही है कि आफ्टर एजेस मैंने पहली बार अपने पैसे से लिपस्टिक लाई. मतलब हाउ मच पावरफुल दिस सेंटेंसेस. जैसे आपने हस्बैंड को जाके मनाया, उसको गुस्सा आ गया, मे बी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ उसकी वाइफ. When women support women, strength multiplies and change becomes unstoppable. Today we celebrate International Women's Day, a day that reminds us of the strength, courage, and the resilience of women across the world. But beyond the celebrations and messages, it's also a moment to reflect on something deeper. Opportunity, independence, and the power of giving women the space to shape their own futures. Because when women are empowered, families change, communities change, and ultimately, societies are transformed. That's exactly why today's guest is someone really, really special. Joining us today is Indra Dhar, a remarkable social entrepreneur who has dedicated her work to creating meaningful opportunities for women through her initiatives and NGOs. She has helped empower and employ more than 1,500 women, enabling them to build financial independence, confidence, and dignity in their lives. She is also the driving force behind HandKnit India, a sustainable business that not only celebrates handcrafted products, but also creates livelihood for women artisans. Thank you so much for being here, ma'am. So before starting this special episode of Women Supporting Women of International Women's Day, we are going to do a bit of a rapid fire first, and then we're going to start with the questions. That's fine. Okay. So my first question to you is, one woman who inspires you every day. Sudha Murthy. Okay. One mentor or friend who has motivated you till today. Yes, my brother as my mentor. Okay. Favorite woman-led brand that you love. Naika. Okay. One woman in history that you want to meet. Rani Lakshmibai. Okay. A book, movie, or a podcast that you get inspired by. Thappad. There's a movie. Yes. Taapsee Pannu, right? Maybe. I'm not sure, but I remember Thappad. Okay. One myth about women that you want to change today. That they are emotional fools. They can't be in the business. That I want to change. That emotional intelligence is leadership. Very, very nice thought. Before we get into the conversation, I want to know more about you. Like, before the businesswoman Indra Dhar, what was your childhood like? What inspired you to be the woman you are today? I mean, if you start from the childhood, Yes. a stable household, well-to-do, a stable job. I was a physics professor. Okay. And everything was fine. I mean, there was no need for me to become what I am today. But it just started with some story that I can relate some other time. But once I started the business, then I understood that this was my strength. Okay. Maybe I was better as businesswoman than as a teacher. I mean, I am by heart. I am there always teaching people.
but still the style of teaching is more of leadership Correct. than the classroom teaching. Okay. So, why did you have this thought of leaving a proper, stable government job and then, moving on to doing your own business? As we all know that businesses is full of risks. You don't even know कि चलेगा नहीं चलेगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, आपको कुछ नहीं पता, आप बस जा रहे हो, अपना रिस्क ले रहे हो. आपको क्यों लगा कि मुझे एक इतना अच्छा जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहिए? मैंने ये कोई सोच के प्रोग्राम नहीं बनाया. इट्स मोर ऑफ इमोशनल साइड ऑफ द होल स्टोरी. करेक्ट. कश्मीर प्रॉब्लम उन दिनों हुआ था. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 33 years बैक. एंड उस टाइम पे the women from our community, I am a Kashmiri myself, they had no income of any sort. Since I already said my brother is a mentor for Yes. me, Yes. so he told me that I should do something for women. And वो जोक में कहते हैं ना, ऐसा कोई प्लानिंग से नहीं, बस हो कि गया. सोचा कि he pushed me कि चलो जी you can do it, करो कुछ उनके लिए. और लगा कि पहले ये तो ठीक है, पार्ट टाइम में करेंगे, कर लेंगे, कुछ कर लेंगे. लेकिन फिर हो गया. इतना इन्वॉल्व हो गए कि फिर तो पॉसिबल ही नहीं था. मतलब टर्निंग बैक वॉज नॉट एनी ऑप्शन. जस्ट लीव द जॉब वॉज द ओनली ऑप्शन. ओके. एज यू ऑलरेडी सेड, ये आपने चालू किया था 3 decades पहले. Yes. 3 decades से भी ज़्यादा टाइम हो गया. Yes. Growing up in I think India. around 92 we started. Okay. मैम, while you were growing up in India, आपने ऐसी कौन सी रियलिटी देखी, या फिर आपने ऐसे कब आपको समझ आया कि देर आर मोर वुमेन इन नीड एंड मेरे जैसे और भी लोग होने चाहिए जो और विमेन को सपोर्ट करे, विमेन सपोर्टिंग विमेन? कब लगा आपको दैट दिस इज नीडेड, दिस इज द नीड ऑफ द आवर? ये मुझे तभी लगा जब मैं इन्वॉल्व हो गई. Okay. When I was working with women, मेरा हैंड knit का काम है. आई एम एक्सपोर्टर. तो हम लोग जब women के साथ काम कर रहे थे तो हमने अंडरस्टैंड किया कि इट्स नॉट ओनली कि उनको सपोर्ट चाहिए फॉर बिजनेस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए उनको सपोर्ट चाहिए. इट वॉज टू ब्रेक दैट इंटरनल बिलीफ कि हमें परमिशन नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए. ये तभी हमें पता चला जब हम काम करने लगे उनके साथ कि इतने टैलेंटेड लोग, इतने सही लोग, लेकिन वो और किसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो उनको बोलें कि तुम लोग सही हो. तो तब हमें लगा कि इट्स द नीड ऑफ द आवर. और उस टाइम तो बिल्कुल ही ज़्यादा थी. अभी gradually things are becoming better, very but much better. Yes. gradually we agree. लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ जी सब कुछ ठीक है. अभी भी ठीक नहीं है. अभी भी पढ़े लिखे लोग घर में हैं. अभी भी पढ़े लिखे लोग फादर, ब्रदर, हस्बैंड किसी न किसी का सहारा लेते हैं और किसी न किसी तरीके से उनसे सपोर्ट चाहते हैं. बट आई एम सो सॉरी लाइक टू कट यू डाउन, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि कई विमेन जो होती हैं उनका खुद का चॉइस होता है कि मुझे काम नहीं करना, आई वांट टू सिट डाउन एंड आई वांट टू टेक केयर ऑफ द हाउस. तो डू यू थिंक कि ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, एज लॉन्ग एज इट इज देयर ओन डिसीजन. ये जो लोग समझते हैं ना कि काम करना ही बस ज़रूरी है, इट्स नॉट नेसेसरी. अगर आपका चॉइस है घर में रहना, घर भी एक, आप मान लीजिए घर भी एक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है. बिल्कुल. जहाँ पे सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, हर डिपार्टमेंट देखना पड़ता है. इफ देयर चॉइस इज टू स्टे इन दैट ऑफिस एटमॉस्फेयर, जो उनका घर है, जहाँ पे वो अपने हर डिपार्टमेंट को रन कर रहे हैं ब्यूटिफुली,
एंड दे आर सेटिस्फाइड, तो फिर मज़ा ही मज़ा है। लेकिन अगर वो किसी और के दबाव में या किसी और के डिसीजन के बाद ये डिसीजन ले रहे हैं, then it is a problem. Okay. then it's not, they are not satisfied with their life. गॉट इट। ठीक है। तो जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे मुझे अभी तक पता लग रहा है कि बहुत लोग होते हैं ना जो अपना बिजनेस प्रॉफिट के लिए स्टार्ट करते हैं, क्या आपका इंटेंशन डे वन से यही था कि मुझे और विमेन को सपोर्ट करना है? डे वन से तो हमने प्रॉफिट की बात सोची ही नहीं। द बिजनेस स्टार्टेड जस्ट विद अ थॉट कि हम लोगों को इन विमेन को हेल्प करना है। तो मैं उस थॉट से आई थी। मैंने तो इसको कभी विजुअलाइज भी नहीं करा था कि हम 2 साल में कहाँ पहुँचेंगे और कितने लोग हमारे साथ होंगे या हम कितना इम्पैक्ट करेंगे। मतलब लेट मी बी ट्रूथफुल कि हम बस जंप कर गए कि ये करना है। उसके बाद हाउ इट बिकेम बिजनेस इज इट ग्रो वेरी क्विकली ओनली बिकॉज देयर वाज अ नीड। अगर नीड नहीं होती तो ये बिजनेस बनता ही नहीं। यही एक छोटा सा एनजीओ टाइप का काम बन जाता। करेक्ट। बट सिंस नीड थी तो बहुत सारे लोग जुड़ते गए। यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर एक छोटा काम इतना बड़ा बन रहा है और इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सारा ऑर्गेनिकली हो रहा है या नेचर इज गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस। इट्स नॉट दैट आई हैव डन एनीथिंग फैंटास्टिक, आई विल से आई वाज ए MBA, नथिंग लाइक दैट। वी जस्ट ग्रो, वी लर्नड। करेक्ट। अभी तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपने तो 33 इयर्स से ये बनाया है, इसको ग्रो किया है। कुछ चैलेंजेस आपने ज़रूर फेस करे होंगे जब आप वो विमेन को लेकर आ रहे होंगे, यू वर कलेक्टिंग देम टुगेदर टू वर्क विद यू। कुछ चैलेंजेस फैमिली की तरफ से भी आए होंगे। एनीथिंग दैट यू कैन शेयर, द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड इन योर जर्नी इन द अर्ली इयर्स? हाँ, चैलेंजेस तो बहुत थे, बट मे बी नॉट फ्रॉम माई फैमिली बिकॉज हम लोग वी आर नॉट फ्रॉम ए business background. No, like I'm not talking about your family, but the family of the women who were coming together. वो तो मैं बोल ही रही हूँ कि वो तो that is the main challenge कि women were talented. Correct. लेकिन उनको खुद नहीं पता था कि हम talented हैं। और उनके families नहीं समझते थे कि ये कुछ कमाई कर सकते हैं। like उनको लग रहा था कि ये तो हाउसवाइफ है, ये क्या करेगी। करेक्ट। तो दिस इम्प्रेशन ऑफ ब्रेकिंग दैट ये तो हाउसवाइफ है वॉज वेरी डिफिकल्ट। मतलब मुझे याद है आज भी कि हम घरों में जाते थे, उनको बोलते थे कि आपका ये जो स्किल है हैंड निटिंग का, ये आपको पैसे दिलवा सकता है, हम आपको मदद कर सकते हैं। तो मतलब उनको हंसी आती थी कि ये भी कोई चीज़ है क्या, हम तो ये नॉर्मली घर पे ऐसे ही कर देते हैं, ऐसे ये तो हॉबी है। ये थोड़ी इससे थोड़ी कोई पैसा कमा सकता है उस समय पे। तो दैट वाज ए बेसिक चैलेंज कि उनको ये कॉन्फिडेंस दिलवाना कि तुम लोग घर से निकलो तो सही। और जब वो निकले और फिर उनको एक्सपोजर मिला, तब उनको समझ आया कि इट्स नॉट ओनली कि आप बहुत बड़ा पैसा कमाओ। अगर आपका छोटा पैसा भी है, वो छोटा पैसा भी आपको इतनी सारी कॉन्फिडेंस देता है। आई एम सेइंग, कई बार मुझे इतना अच्छा लगता था कि जिस विमेन को हमने घर से लाया और कल वो इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रही है और बोल रही है और छोटा सा अपना लिपस्टिक ला रही है और बोल रही है कि आफ्टर एजेस मैंने पहली बार अपने पैसे से लिपस्टिक लाई। मतलब हाउ मच पावरफुल दिस सेंटेंस इज। करेक्ट। हम लोग समझते नहीं है, लिपस्टिक का कोई वैल्यू ही नहीं है। इट्स जस्ट मे बी 20 रुपीज़ और 50 रुपीज़। लेकिन वो फीलिंग
कि ये मैंने अपने पैसे से लाया है, अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपनी सेल्फ के लिए, दैट इज़ वेरी पावरफुल, दैट इज़ एक्चुअली पावरफुल। वेरी नाइस, इट्स सो गुड टू हियर। आपको नहीं लगता जब आप ये सब सुनते होगे आपको भी गूज़बम्स आने लगते होंगे? क्योंकि हमने वो पीरियड ऑलरेडी क्रॉस किया है। दीज वेयर द रीजंस, जब हम ऐसी बातें सुनते थे, दीज वेयर द रीजंस कि हम कभी पीछे मुड़ना नहीं चाहते थे और कभी हम पीछे मुड़े नहीं। हम हमेशा फिर आगे ही बढ़ते गए। अगर किसी ने बोला कि मैंने पहली बार अपने बच्चे के लिए ट्यूशन रखा एंड माय हस्बैंड वाज रिफ्यूजिंग टू पे फॉर द ट्यूशन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, उनके पास भी पैसा नहीं था। करेक्ट। तो उनके पास नहीं था ये एक्स्ट्रा वैकेंसी करने के लिए, भाई स्कूल जो पढ़ा रहा है, हम ट्यूशन नहीं रखेंगे। बट द मदर इज वर्किंग, अर्निंग एंड टेकिंग ए कॉन्शियस डिसीजन कि मुझे अपने बच्चे के लिए ट्यूशन रखना है। तो कितना फील गुड फैक्टर है ये। बिल्कुल। तो ये चीज़ें तो हमने उस टाइम पे बहुत सारी सुनी और बहुत सारी फील करी। तो अब वो स्टेज गुजर चुका है। लेकिन फिर से मैं मतलब आई एम रिमेम्बरिंग दैट टाइम। करेक्ट। बट देन आई एम रिमेम्बरिंग कि जो उस वाली टाइम का स्टेज था, वो लोग तो अब आगे बढ़ गए जो हमारे साथ चले। बहुत हम एज ए ग्रुप यू कैन से, और यू कैन से एज ए कम्युनिटी हम आगे बढ़ गए। लेकिन वो जो स्टेज उनकी उस वक्त थी, बहुत लोगों की स्टेज वो आज है, जो हमें अपने मेट्रो शहरों में दिखती नहीं है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि उस वक्त एक लेवल की ज़रूरतें थी, अब किसी और की लेवल की ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरतें कभी कम नहीं होती और आज भी नहीं कम है। वेरी गुड टू हियर दैट। सब लोगों को सेल्फ डाउट बहुत होता है। आपने इतना ज़्यादा बिजनेस बढ़ाया, वर देयर एनी मोमेंट्स वे यू फेल्ट लो एंड यू जस्ट वांटेड टू गिव अप? इफ यस, देन हाउ डिड यू कोप अप विद इट? यस, मैनी टाइम्स। ऐसा कोई भी नहीं शायद होगा जिसको ओवरवेल्म नहीं होता होगा। बिल्कुल। एंड आई एम नॉट एनी एक्सेप्शन। मुझे भी ओवरवेल्म कई बार हुआ है। मे बी यू कैन से लेस ऑफ चैलेंजेस, मोर ऑफ फटीक, बिजनेस फटीक यू कैन से, और बहुत ज़्यादा दिमाग वाला काम। तो आई टुक, अब मैं चैलेंज को कैसे, इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया। यस, मैंने थोड़ा शेल्टर ले लिया ऑफ लिटिल बिट बीइंग स्पिरिचुअल। आई मीन, आई डोंट मीन पाठ पूजा करो, but I mean meditation, silence. Yes. Okay. A bit of silence. That is very useful for stressed mind. Correct. Yes. I'm not promoting meditation like घंटों में बैठो और फिर जप करो. That's not my style of meditation. But focused रहो. साइलेंस में रहो, रिफ्लेक्ट करो व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग, रिफ्लेक्ट करो क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रहा है, रिफ्लेक्ट करो क्या करने से मैं बेटर हो सकती हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है। और जो जैसे मैंने कहा कि इट वॉज मोर ऑफ मेंटल फटीक, वो कम करने में बहुत मदद करती हैं। आप चुपचाप आधे घंटे तक रहो, 15 मिनट तक रहो, जो भी टाइम अवेलेबल है, एंड डू नथिंग, थिंक ऑफ नथिंग, डोंट स्ट्रेस, डोंट से कि ओ मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे जप करना है, मुझे ये करना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आजकल मार्केट में आई हुई हैं जो लोग प्रमोट कर रहे हैं। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ऑफ दीज थिंग्स।
आई एम प्रमोटिंग कि सब लोगों को वो स्ट्रेस्ड है या नहीं है, ओवरवेल्म्ड है या नहीं है, तब भी 5 मिनट अपने आप पे दे दो और इंट्रोस्पेक्ट करो. या इंट्रोस्पेक्ट करो. डू नथिंग, इवन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. बस बैठ जाओ. अगर कुछ मन में आ रहा है तो देख लो क्या आ रहा है. नहीं कुछ आ रहा है तो कुछ मत करो. बट हाउ मच इट इज हेल्पफुल, दैट इट्स माई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. एक टाइम मुझे ऐसा लगा था कि मुझे अपने ऑफिस जाने का मन ही नहीं था, कि मैं सोच रही थी कि मुझे ऑफिस जाना ही नहीं है. मतलब ऐसा भी स्टेज आया था. वेदर आई वॉज मेंटली एग्जॉस्टेड या मैं ओवरवेल्म्ड थी, या मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी, या मैं कूप अप नहीं कर पा रही थी विद सो मेनी थिंग्स. तो था, बट मैं ही थी जो इसमें से निकली भी. और मैं ही थी जिसने अंडरस्टैंड किया कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम. आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी में और आज की एंटरप्रेन्योर जर्नी में अगर एक वुमेन चाहे अपना खुद का बिजनेस करने चाहे, और तो आपको क्या लगता है कि उस वक्त और इस वक्त में क्या क्या चेंजेस हो गए होंगे? आज की डेट में तो बहुत एडवांटेजेस भी हैं और Correct. डिसएडवांटेजेस भी हैं. पहले टाइम में नेटवर्क नहीं था, विजिबिलिटी नहीं थी, कोई सोर्सिंग के या कोई बिजनेस चलाने के तरीके नहीं नोन थे. लेकिन आज तो सोशल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड पूरा भरा पड़ा है आपको सिखाने के लिए. बस आप सीखो, आपको इंटरेस्ट हो, आपको सब कुछ मिलेगा. आपको मार्केट चाहिए, आपको सोर्सिंग चाहिए, आपको एडवर्टीजमेंट्स चाहिए, सब अवेलेबल टू यू. लेकिन जो पहले वाला टाइम था उसमें नथिंग वॉज अवेलेबल टू यू. वो कहते हैं ना कि उस वक्त खोद खोद के निकालना पड़ता था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी. आज की डेट में तो इन्फॉर्मेशन का भंडार है. सच्चा झूठा वो दूसरी बात है, बट इन्फॉर्मेशन तो है ना. करेक्ट. तो ये डिफरेंस है. अगर आज की डेट में लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत इजी है, बहुत बेहतर है. मगर इसमें भी एक व्हाट डू यू कॉल, एक लकूना है कि आज का बिजनेस करने वाला समझता है कि ये इतना इजी है जितना एक रील बनाना है. क्योंकि रीलों ने, सोशल मीडिया ने इसको डिफरेंट एस्पेक्ट में दिखाना चाहा. अगर कोई मान लीजिए मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे दिखावा करना है, तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है. बिल्कुल. मैंने थोड़ा सा दिखावा कर लिया, मैंने बोल दिया मैं तो बहुत ही ये हूँ वो हूँ, ठीक है, तो कोई तो वेरीफाई करने तो आएगा नहीं. लेकिन अब जो दूसरा आदमी है जो एक्चुअल में ये काम करना चाहता है, वो मेरे को देख के सोचेगा कि ये तो इसकी रील तो बहुत ही बढ़िया Viral है, हो गई, हाँ. ये तो सब कुछ अच्छा है, ये तो बस 5 मिनट का काम है, क्योंकि मैंने बोल दिया कि ये 5 मिनट का काम है. उन्होंने सुन लिया. और जब उनको एक्चुअल में, जब वो ओवरवेल्म हो जाते हैं, एक्चुअल में उनको समझ आता है कि ये इतना इजी नहीं है, उस वक्त फिर वो बिजनेस फ्लॉप होने के भी चांसेस होते हैं और इम्पेशंस बढ़ने के भी चांसेस होते हैं. पहले ज़माने में पेशेंस भरपूर था, बिजनेस स्टेबल था. लेकिन आज के ज़माने में पेशेंस कम है और बिजनेस स्टेबल नहीं हो पा रहा है, ओनली बिकॉज कंपैरिजन्स बहुत ज़्यादा है. करेक्ट. और दिखावा बहुत ज़्यादा है.
मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि कोई आदमी समझता है कि ये जो रील है, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब मान लो, रील ये तो बड़ा इजी है। फिर जब आप जाओगे एक्चुअल में समझने के लिए तो आप जानोगे कि ये उतना इजी भी नहीं है। आपने कंटेंट सोचना है, आपने उसको लिखना है, आपने उसको शूट करना है, फिर आपने उसको एडिट करना है, फिर बार बार सुनना है, फिर एडिट करना है, फिर गलतियां निकालना है। सो दैट मीन्स एक काम करने के लिए आप रिपीट काम कर रहे हो, तब जाके एंड में आपका एक अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है। वही रिपीट इज द ट्रिक। अगर आप बिजनेस में रिपीटिशन को बर्दाश्त कर सकते हो तो आपकी बिजनेस 100% बढ़ सकती है और बढ़ेगी भी, क्योंकि आपने पेशेंस रखी। अगर आपने ये समझा कि ये ऐसे होएगा तो बिजनेस नहीं ऐसे बढ़ता। रिपीटिशन इज द ट्रिक, यही बिजनेस का रूल है। हम आजकल के टाइम के भी बारे में बात कर रहे थे। आपने खुद ने बोला कि कितना प्रेशर बढ़ गया है, कंपैरिजंस कितना बढ़ गया है। एक अलग टाइप का प्रेशर आ गया है कि भाई शी हैज़ मेड इट एंड आई हैव टू। मतलब अगर उसका चल गया, आपने खुद ही बोला कि अगर उसका चल गया तो उसको लगता है यार ये कितना ज़्यादा ईजी है तो मैं भी कर लूँगी। बट साथ ही में बहुत ज़्यादा सुसाइड केसेस भी हो रहे हैं हाल ही में इस चीज़ को लेके। तो व्हाट डू यू हैव टू से टू दोज पीपल जो प्रेशर ना ले इस चीज़ का, बट उनको कहीं ना कहीं हो रहा है दैट आई हैव टू मेक इट, आई हैव टू डू इट। व्हाट डू यू हैव टू से टू दोज पीपल? दो चीज़ें हैं, ये वो अकेले नहीं हैं जिनको हम मैसेज दे सकते हैं। करेक्ट। सबसे पहले उनकी फैमिली आती है। हमें मैसेज में भी फैमिली को देनी चाहिए कि वॉट एवर उनके अराउंड हो रहा है, उनको ये स्ट्रेंथ दी जाए कि ये जो है ये दिखावे का वर्ल्ड है, हम दिखावे के दुनिया में फंसे पड़े हैं और यहाँ से निकलने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। अपना डिसीजन ले लो, अपने थॉट को क्लियर करो और कंपैरिजन कंप्लीटली बंद कर दो। किसी एक के लिए ये बहुत इजी है ये काम करना, कोई भी काम करना। मान लीजिए हम बोले अंबानी के बच्चे, ग्रैंड बच्चे के लिए बिजनेस करना कितना इजी है। अब मैं बोलूँ भाई मेरा बच्चा, मेरा ग्रैंड बच्चा भी वैसे ही बिजनेस करेगा, कर पाएगा क्या? नॉट पॉसिबल। सो नेवर कंपेयर। मतलब ये तो पहला स्टेप है कि कंपैरिजन नहीं। आप जहाँ पे हो आप अपने आप को एलिवेट करने का सोचो। आपकी फिल्म इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा सुसाइड केसेस हैं। क्यों है? क्योंकि वो बड़े बड़े स्टार्स को देखते हैं, अपने आप को छोटा मानते हैं। ऑल्दो दुनिया उनको बहुत अच्छा और बहुत सक्सेसफुल मानती है, लेकिन वो अपने आप को नहीं सक्सेसफुल मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि वो बड़े स्टार्स को देखते हैं, कंपेयर करने लगते हैं। सो ये अगर आप एक चीज़ सिर्फ अपने बच्चों को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को सिखाओ तो वो एक चीज़, ओनली वन थिंग, अपने डिसीजंस खुद ले लो और कंपैरिजन कंप्लीटली बंद कर दो। दिस इज माय एडवाइस टू एवरीवन। जितना आप कंपेयर करते जाओगे उतना आपके माइंड में वही चलता रहेगा एंड देन इवेंचुअली खुद तो अपना काम तो कर ही नहीं सकते हो ना। करेक्ट। क्योंकि आपको किसी को कॉपी करना है। हाँ। अब आप उसमें लगे रहोगे कॉपी करने में तो आप अपने आप की इंडिविजुअलिटी तो पूरा खो ही दे दो। मतलब आप खो देते हो इंडिविजुअलिटी सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि मुझे उसको वो बनना है या उसको बनना है, उसको देखना है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं आज यहाँ हूँ, मैं 5 साल के बाद कहाँ होंगी, इफ़ यू वर्क टूवर्ड्स दैट यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी सेटिस्फाइड, यू विल नॉट हैव प्रेशर। प्रेशर कोई दूसरा नहीं देता है, प्रेशर खुद आदमी अपने आप को देता है। Very true. I want to ask you,
How different do you think the aspirations of Gen Z women are as compared to the previous generations? देखो, प्रीवियस जनरेशन में तो शायद एस्पिरेशंस बहुत कम थी, या एस्पिरेशंस उसी हद तक थी कि मेरी फैमिली ठीक हो, मैं ठीक हो, मेरे हस्बैंड को अच्छी जॉब हो. मतलब एस्पिरेशन थी ही नहीं ये कि मेरी अच्छी जॉब हो. एस्पिरेशन वाज कि मेरे हस्बैंड को अच्छी जॉब हो, मेरे भाई को सक्सेस मिले, मेरे फादर को अच्छी पोजीशन हो. दीज वेयर द एस्पिरेशंस. और अगर अपनी होती भी थी तो छोटी लेवल पे. बिग, टू थिंक बिग वाज नॉट कॉमन. लेकिन आज के टाइम में टू थिंक बिग इज एक्चुअली कॉमन. बट खराबी कहाँ हो रही है? खराबी हो रही है डिसीजन मेकिंग में. खराबी हो रही है इस वजह से कि उनको मालूम नहीं अभी है कि हमारी डायरेक्शन क्या है. मैं अगेन, हम सोशल मीडिया पे ही बैठे हैं, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया को ब्लेम इस चीज़ में कर रही हूँ कि अच्छा कंटेंट हमेशा नहीं मिलता है. ऐसा कंटेंट भी मिलता है जिससे जेंजी हाइपर हो जाते हैं. डू यू थिंक जेंजी को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है सोशल मीडिया ने? 100%. तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ, मैं बैठी हूँ यहाँ सोशल मीडिया पे, लेकिन विद ए रिस्पॉन्सिबिलिटी. करेक्ट. कि हम जो बात करेंगे उनकी अच्छाई के लिए करेंगे. उनको नहीं बोलेंगे ये रील और दिस वॉट एवर कन्वर्सेशन वी आर डूइंग, दिस पॉडकास्ट, इट इज़ ईजी, इट इज़ 1 minute गेम. इट इज़ नॉट 1 minute का गेम. कि अगर हम यहाँ एवरी इंडिविजुअल एक अपनी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा कि अगर हमें कंटेंट देना है, हमें फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर सोसाइटी कंटेंट देना है, उनकी अच्छाई के लिए कंटेंट देना है, तो सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म. मुझे नहीं लगता इससे बेटर कहीं और किसी स्टेज पे किसी को मिलेगा. कितना इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन है वो हमारी सोसाइटी को मार रही है. जहाँ तक अच्छी इन्फॉर्मेशन है वहाँ तो बेस्ट है ही है. तो जेंजीज को मैं 100% मानती हूँ कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि 50 लोग 50 बातें कर रहे हैं, 50 थॉट्स उनको दे रहे हैं. तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन से थॉट के साथ जाएंगे. और ये तो नेचर है कि आपका इंटरनल नेचर जैसा होता है वही आप बाहर से अट्रैक्ट करते हो. आई मीन, आई एम टॉकिंग ए बिट मोर स्पिरिचुअल, बट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अगर मैं हाइपरनेस में हूँ, करेक्ट, तो मुझे हाइपरनेस वाले लोग ही अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वो वाइब्रेशंस हैं. हम उन्हीं वाइब्रेशंस को आके पकड़ लेते हैं. लेकिन आप, अगर आपकी वाइब्रेशन है शांत, तो आप देखोगे शांत लोग ही आपके अराउंड आएंगे. अगर आपकी वाइब्रेशन है लविंग, आप देखोगे लविंग वाले लोग ही आपके अराउंड आएंगे. यू विल नॉट फाइंड फाइटर्स अराउंड यू. बट फाइटर्स भी ज़रूरत है, लेकिन अलग स्पेस के लिए. लव भी ज़रूरत है अलग स्पेस के लिए. द अदर थिंग्स भी ज़रूरत है अलग स्पेस के लिए. मतलब जितने स्पेसेस हैं उनका अपना अपना महत्व है. सो मैं हमेशा यही समझती हूँ कि हमें हर एस्पेक्ट को इंटीग्रेट करके चलना चाहिए. क्योंकि अगर हम हर एस्पेक्ट को इंटीग्रेट करेंगे तब हमारा फ़ायदा है. अगर हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे पकड़ेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और फिर आप हाइपर होके वही करने की कोशिश करेंगे, तो आपको हाइपरनेस वाले लोग मिलेंगे और आपका बिजनेस नहीं चलने वाला है. आप हाइपरनेस में हैं तो बिजनेस वाले भी हाइपरनेस में ही होएंगे.
So you will not get any advantage out of that. You have to create a balance. Correct. I never use the word balance. Okay. And why is that? I will tell you. बैलेंस का मतलब है कि आपने हर एस्पेक्ट पे बैलेंस कर लिया, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप घर में हैं, आप बच्चे को देख रहे हैं, तो आपने बैलेंस कर लिया ना. आपने ऑफिस छोड़ दिया और आपने घर में बच्चे के साथ काम कर लिया, तो आपने सोचा कि ये मेरा बैलेंस है, सोचा भी और करा भी. बैलेंस कर रहे हो. लेकिन अब आपको एक फ़ोन आया अपने ऑफिस के ड्राइवर से, उसने बोला गाड़ी पकड़ी गई, पुलिस वाले ने कुछ चालान कर लिया, तो आप क्या उसको बोलोगे कि तू उधर ही रात में बैठ, मैं अभी बच्चे का टाइम है, दिस इज़ बैलेंस टाइम? नहीं बोलोगे ना. सो इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि अगर बच्चे का टाइम है, यू विल हैव टू टेल द चाइल्ड कि गिव मी 5 मिनट्स, तुम ये काम तब तक करो या जो भी करो, एंड घुमाओ फ़ोन, जो भी करना है उसका चालान क्लियर करो, उसको पैसे दे दो, उसको फ्री कर दो और वापस आ जाओ. सो दैट इज़ इंटीग्रेशन, कि हर चीज़ को मिला के काम करो. हर चीज़ को बैलेंस आप कर नहीं सकते हो, बैलेंस पॉसिबल ही नहीं है. इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंटीग्रेट करो. यू शुड हैव योर डिसीजन कि मुझे इस टाइम पे क्या करना है. ऐसे भी लोग हैं कि जो बोलते हैं कि 6 बज गया या 6:30 बज गया, मेरा जॉब ओवर है. ठीक है, फाइन. वो कभी लीडर्स नहीं बन सकते. वो क्यों लीडर्स बनेंगे? क्योंकि उनके पास तो लीडरशिप क्वालिटी ही नहीं है. लीडरशिप का मतलब है प्रॉब्लम को सॉल्व करना. वो बोलेंगे मैं अभी घर में हूँ, मेरा 6:30 बज गया, मैं कल सुबह सॉल्व करूँगा, तो कैसे वो लीडर बन सकता है? सो जब आप इंटीग्रेट करते हो, लीडरशिप की क्वालिटी ही है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और इंटीग्रेशन में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो. कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं जहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये मेरे बस की नहीं है. सब चीज़ों को अपने बस की बना लो और आगे बढ़ो. वेरी नाइस. तो आज के टाइम में जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सब लोग बोलते हैं वुमेन सपोर्टिंग वुमेन, वुमेन के लिए ही बढ़ना चाहिए. बट अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द रोल ऑफ अ मैन इन अ वुमेन्स लाइफ टू एम्पावर हर? इज इट इम्पॉर्टेंट? अगर एक मैन का साथ हो तो डज इट हेल्प द वुमेन और नो? मैं इसको थोड़ा सा ना डिफरेंट वे में बता सकती हूँ. हम हमेशा सोचते हैं, या हमारा सोशल मीडिया हमेशा ये दिखाता है कि अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम मेन के अगेंस्ट की बात करते हैं. इसीलिए ये क्वेश्चन भी आता है या ये टॉपिक भी आता है कि मेन का क्या रोल है. लेकिन जब हम मेन की बात करते हैं तो क्या हम पूछते हैं विमेन का क्या रोल है? हम नहीं पूछते हैं. इट इज़ एज्यूम्ड दैट विमेन इज पार्टनर. तो हम जब विमेन की बात करते हैं तो इट शुड बी एज्यूम्ड कि मैन इज ए पार्टनर. तो उसका रोल इतना है कि जो उसकी वाइफ डिसाइड करती है वो उसको एटलीस्ट ये रोके ना, उसको ये बोले कि तू कर जो तुझे मर्जी है, एज ए पार्टनर, नॉट एज ए जबरदस्ती, एज ए ऑपोजिट पर्सन. कई सारे लोग हैं जो अपनी मर्जी से, आपने शुरुआत में ही बोला, कई सारे लोग हैं जो अपनी मर्जी से घर बैठते हैं. अपनी मर्जी है तो उसका हस्बैंड उसका पार्टनर है, तो वो एग्री करता है, यस यू लुक आफ्टर द चाइल्ड, आई विल लुक आफ्टर माई फाइनेंसेस. तो दिस इज पार्टनरिंग. कोई खराबी नहीं इसमें. अब मान लो दूसरा कपल है, वहाँ पे विमेन सेज कि मुझे नहीं घर में बैठना है, मुझे जाना है, मुझे जॉब पे जाना है, आई वॉन्ट सम फाइनेंशियल फ्रीडम.
मुझे अच्छा नहीं लगता घर में बैठना, और उसका पार्टनर बोलता है गुड, जो तुम्हारे पैसा होगा और मेरा पैसा होगा उसमें हम जमा करके वी विल हैव वन हेल्प एट होम, तो बैलेंस हो गया ना। सो दैट मीन्स जब दो जने पार्टनर बन के एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, वही मैन का रोल है। सिर्फ हम मैन के लिए एक बात कह सकते हैं कि विमेन को रोको मत कि उसको क्या करना है, अगर उतना बस नहीं करोगे तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड। बस रोको मत, बाकी तो सब चल जाता है, वेदर वो घर में है, काम कर रही है, कुछ भी है, दो लोग आपस में जोड़ के कुछ भी कर सकते हैं। सपोर्ट करो, बस मना मत करो। बस मना मत करो, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। जब आपने चालू किया था 33 इयर्स पहले, तो आपको किसी ने रोक टोक किया, किसी ने मना किया, एंड समथिंग दैट यू फॉट बैक एंड लाइक नहीं मुझे ये करना है? नो, आई कांट लाई, क्योंकि हमारी फैमिली दैट टाइम भी वी वर एजुकेटेड एनफ टू अंडरस्टैंड कि हम इंडिपेंडेंट है, और हमारी फैमिलीज में ऐसा कुछ रिवाज नहीं था। रादर मुझे लग रहा है कि उस ज़माने में हमारी सारी फैमिलीज में विमेन वेयर सक्सेसफुल। मैं खुद फिजिक्स प्रोफेसर थी, करेक्ट, तो ऐसा कोई माहौल नहीं था, तो इसलिए मैं अपने आप को एक्सक्यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन थाउजेंड्स ऑफ विमेन, हमने कितने लोगों के साथ काम किया है जिनको हमने देखा है कि उनको चैलेंजेस है। हम खुद मैं खुद जाके उनके हस्बैंड से बात करती थी, व्हाई यू आर नॉट अलाउइंग हर टू वर्क। ओके, तो जो मेरे साथ वाले, मतलब माई टीम, हाँ, मतलब मैं जिस घर में जाती थी ना, वो दरवाजे के बाहर बैठते थे, उनको लगता था कि ये अब मार खा के ही आएगी। तो वो बचाते थे आपको? लेकिन मैं उनको बोलती थी तुम लोग बाहर बैठो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं जाऊंगी। ऐसा भी सिचुएशंस हुई हैं कि जहाँ पे लोगों ने, मतलब बहुत सारी जगहों पे लोगों ने दरवाज़ा बंद करा है मेरे ऊपर, और मैंने धक्का मार के दरवाज़ा खोला है कि आई एम हियर टू गिव समथिंग, नॉट टू टेक समथिंग। मतलब ये बहुत मतलब करेज वाली बात है, और मैं अपने आप को सोच रही हूँ कि मुझे नहीं पता ये इतना करेज मेरे पास कैसा था। आई वॉज यंग दोज डेज, तो तब भी मैं, मतलब आई वॉज जस्ट फियर्स, जाओ क्या करेगा बंदा, इसका हस्बैंड है क्या करेगा, लाइक ऐसा टाइप का। तो मुझे लग रहा है कि तब से मैं शायद सोबर डाउन हो गई हूँ। आज मैं शायद किसी के हस्बैंड के साथ इतना ज़ोर से नहीं बोलूँगी जितना मैं उन दिनों बोलती थी कि नहीं, इसको जाना है, इसको काम करना है, इट्स हर डिसीजन। मतलब वो घबरा जाते थे कि पता नहीं हस्बैंड शाम को क्या बोलेगा। बट ऑन द होल नो वन इज बैड पर्सन। जब हम उनको समझाते थे, मुझे तो, मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती थी, जब मैं उनको समझाती थी कि हाउ गुड इट इज़ फॉर योर फैमिली, इट्स नॉट ओनली फॉर यू। अगर तुम्हारी वाइफ बाहर जाती है, तुम पैसा छोड़ दो, तुम ये देखो कि इसकी कॉन्फिडेंस कितनी एलिवेट हो जाएगी, तुम ये देखो कि ये किस खुशी वाले माहौल में वापस आएगी। अगर तुम इसको घर में बोलोगे घर में बैठो, तो ये इरिटेटेड होगी, तुम्हारे ही साथ नैगिंग कंटिन्यूस होगी, और मन भी खुश नहीं होगा, ना आपका ना आपकी वाइफ का। लेकिन अगर आपकी वाइफ बाहर जाती है, तो आप देखो आपके बच्चे सीख रहे हैं हाउ टू बी इंडिपेंडेंट। जो लोग अपने बच्चे के एग्ज़ाम के टाइम उनके सिर पे बैठते हैं, वो उनको इंडिपेंडेंस नहीं सिखाते हैं, वो उनको डिपेंडेंस सिखाते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन समबडी, ऑन मदर, और स्पेशली मदर, कि वो
उनकी पढ़ाई देखे, वो उनको बताएं क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा तुम्हारी बुक कहाँ है, ठहरो ठहरो मैं ले आती हूँ। अच्छा पेंसिल कहाँ है, मैं ले आती हूँ। अच्छा तुम मत यहाँ उठो, मैं इधर ही खाना लाती हूँ। सो ऑल दीज थिंग्स आर लविंग थिंग्स, अच्छा लगता है हार्ट के लिए, बट नॉट फॉर माइंड। करेक्ट। माइंड को चाहिए काम करना, मेरा पेंसिल कहाँ है, मेरा बुक कहाँ है, हाउ ऑर्गेनाइज्ड आई एम, हाउ प्रिपेयर्ड आई एम। बच्चे आज के टाइम में क्यों इतना स्ट्रेस में हैं? आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सुसाइड्स होते हैं, बिल्कुल। तो बच्चों में भी तो होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि माँ बापों ने अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस उन बच्चों पर डाली हुई होती है। उनको पता है हमारे माँ बाप कितना स्ट्रेस्ड है हमारी पढ़ाई के लिए। अगर आप बच्चे को बोलोगे करो जो मर्जी है करो, ठीक है फेल हो जाओगे अगले साल फिर से करोगे। अब अगर यही पेरेंट अपने बच्चे को बोलेगा कि भाई डू वॉट एवर बेस्ट यू कैन डू, आराम से कर लो, फेल हो जाओगे कोई बात नहीं, अगले साल फिर से एग्जाम दे दो, तो बच्चे को समझ आता है नॉट दैट यू मीन दैट कि तुम फेल हो जाओ, लेकिन यू शो दिस कि मुझे तुम्हारी पढ़ाई या तुम्हारे फेल होने में या तुम्हारे कम मार्क्स आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आपने ये शो करा ना बच्चे को, तो बच्चे का प्रेशर पूरा नीचे चला जाता है, क्योंकि अब उस पर प्रेशर ही नहीं है। वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली वो अपने हिसाब से खुद पढ़ रहा है, खुद इंडिपेंडेंट हो रहा है। लेकिन अगर आप माँ बाप बोल रहे हो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, प्रेशर नहीं लेना मगर 95 ले आना, ठीक है, तो आप तो बोल रहे हो हमने तो प्रेशर ही नहीं दिया, हमने तो बच्चे को बोला कुछ भी नहीं कोई बात नहीं, नो प्रेशर 95 ले आना। लेकिन आप तो इनडायरेक्टली तो उसको डबल प्रेशर दे रहे हो। दिस इज द प्रॉब्लम कि माएँ अपने बच्चों के सिर पे बैठ के उनको प्रेशर दे रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले आपने अर्निंग का बात किया था। आई वॉज एक्चुअली कमिंग टू दैट कि जब इन औरतों ने कमाना चालू किया तो डू यू थिंक कि उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई उनकी फैमिली में, उनके इन लॉज में, एंड आफ्टर सम टाइम द हस्बैंड्स एंड इन लॉज वर वेरी मच हैप्पी टू सेंड देयर डॉटर इन लॉज एंड देयर वाइव्स टू यू? आपने कभी ऐसा किया? ये तो इसमें तो दो राय तो है ही नहीं, क्योंकि जिस हस्बैंड को मान लो मैंने कन्विंस किया बहुत मुश्किल से कि इट्स गुड फॉर योर फैमिली, उस वक्त उसको शायद समझ नहीं आया, या मतलब हाफ हार्टेडली सोच लिया कि चलो ठीक है अगर ये इतना बोल रही है, मेरी वाइफ को भी मर्जी है तो ठीक है। लेकिन वही बंदा, वही पर्सन, वही फैमिली, वही इन लॉज बाद में उसको प्रेज करते हैं। क्यों प्रेज करते हैं? क्योंकि फिर वो अपना स्किल, अपनी कैपेसिटी फुल दिखाती है। वो जो दबा हुआ उसके अंदर होता है वो निकालती है, क्योंकि फिर उसके पास फ्रीनेस है। तो क्या फैमिली को दिखेगा? नहीं दिखता है। अब कोई मे बी शर्म के मारे नहीं बोल रहा है कि यू आर द बेस्ट, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल बोलते हैं यू आर द बेस्ट। एंड वो जो टाइम होता है जब वो उसको यू आर द बेस्ट बोल देते हैं, वो टाइम उस औरत की लाइफ का बेस्ट मोमेंट होता है, जब उसको प्रेज मिलता है उन ही लोगों से कि जो लोग उसको कुछ नहीं समझते थे। उसमें तो वो पिक्चर भी तो है, आई थिंक इंग्लिश विंग्लिश में, तो उसमें वो इफ आई एम नॉट मिक्सिंग कि वो लड्डू, उसको बस लड्डू वाली समझते थे। एंड देन शी लर्न्स फ्रेंच एंड शी गोज एंड देन शी लर्न्स इंग्लिश, कि उसको कोई मिलता है फिर वो सीखती है, क्लास में जाता है। हाँ। और जो बच्चे उसके, अपना बेटी आई रिमेम्बर कि वो उसको मजाक उड़ाती थी, लीविंग असाइड हस्बैंड और फैमिली। मैं तो बोलती हूँ अपने बच्चे आपके मजाक उड़ाते हैं,
वही बच्चे फिर आपको रेस्पेक्ट करने लगते हैं। वही बच्चे जिनके लिए आपने पूरा अपना टाइम, अपना करियर, अपना एस्पिरेशंस छोड़ दिए और उनके लिए आप उनके पास बैठे, वही आपका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए मैं हमेशा जब भी मैं लोगों से बात करती हूँ, आई टेल विमेन, देखो ये स्टेज है, इस स्टेज में आपको लगता है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा संभालने का, दिस दैट, तो ये मुझे करना चाहिए। यस, करना चाहिए, लेकिन तरीके हैं। जो वर्किंग विमेन है, क्या उनके बच्चे नहीं पलते? क्या हमारे बच्चे नहीं पले? पले, बहुत अच्छे से पले। सो पॉइंट है कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि मुझे अच्छे से बच्चे पालने हैं, लेकिन मुझे अपने आप को भी इक्वली देखना है, मुझे अपनी एस्पिरेशन को नहीं दबाना है, तो आप तो रास्ते ढूंढ ही लोगे। रास्ते बहुत मिल जाते हैं। आप बोलते हैं अच्छा जी ठीक है, हम बच्चे के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं तो माँ बाप को ही बुला लेंगे, मतलब बड़े सारे रास्ते मिल जाते हैं। बट ये तो कुछ ऑफ दी पॉजिटिव्स आपने बताया, कुछ कुछ नेगेटिव्स भी होता होगा। जैसे आपने हस्बैंड को जाके मनाया तो उसको गुस्सा आ गया, मे बी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ उसकी वाइफ पे। हाँ, कुछ कुछ केसेस ऐसे भी ऐसे भी केसेस है। मैं नहीं बता रही हूँ ऐसे नहीं केसेस है, लेकिन वहां पे गलती किसकी है? हस्बैंड की कि वाइफ की? हस्बैंड की। बिल्कुल नहीं, मैं तो रिवर्स बोलती हूँ, वहां पे गलती है वाइफ की। वो क्यों एक्सेप्ट करेगी हस्बैंड का मारपीट? वो क्यों एक्सेप्ट करेगी हस्बैंड की ज्यादती? सिंपली बिकॉज शी इज नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो हम तो बोलते हैं आप पहले अपना स्किल सीखो, अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, फिर कोई भी मारपीट नहीं कर सकता है। गलती हस्बैंड की है ही है, पता है हमें, लेकिन ज्यादा गलती मैं मानती हूं वाइफ की। क्यों तुम पढ़ी लिखी हो के या जो भी स्किल है उसके पास, ये सब करके क्यों तुम किसी का सुनोगी? आई एम नॉट प्रमोटिंग कि उठ के डिवोर्स करो, आई डोंट प्रमोट। मतलब आई एम राइटिंग ए बुक राइट नाउ, मैं उसमें भी मैंने ये लिखा कि हम कितना भी एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बेसिकली एम्पावरमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। एवरी जो भी औरत है, हर औरत ऑलरेडी इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड है, बस उसका डिसीजन नहीं हो पाता है कि मुझे क्या डिसीजन लेना है। इसका मतलब नहीं है कि हमने किसी को एम्पावर किया, हमने उसको बोला तू घर छोड़ दे, तू डिवोर्स कर दे। नो, हमने उसको बोला अपना घर जोड़ दो। हम यही बोल रहे हैं, तुम्हारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि तुम अपने घर को सपोर्ट करो, सो दैट योर हस्बैंड इज ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। वो अगर मारपीट करता है तो बाद में तुम ऐसा भी दिखा सकती हो, स्टॉप, यू कांट डू दैट। लेकिन वो आप नहीं कर सकते हैं जब आप उसी आदमी पे डिपेंडेंट है। वेरी ट्रू। Thank you so much, ma'am. Now we are coming towards the end of this podcast. And before going, I just want to ask you one question. What does Women's Day actually mean to you other than the social media posts? सब लोग सोशल मीडिया पे सेलिब्रेट करते हैं और मुझे लगता है कई हद तक सिर्फ सोशल मीडिया पर ही वो सेलिब्रेट होता है, बट विद इन कुछ घर में, कुछ जगहों में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है वुमेन्स डे का। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मेरे लिए कोई पोस्ट या कोई कार्ड कोई महत्व नहीं रखता। अगर महत्व रखता है तो वो एक ही चीज है, इफ द वुमन इज फाइनेंशियल लिटरेट, फाइनेंशियल लिटरेसी नंबर 1, नंबर 2 डिसीजन मेकिंग, नंबर 3 सेफ स्पेस फॉर हर सेल्फ। If these 3 you have covered, then you celebrate, मज़े करो, क्योंकि आपके पास ये 3 चीज़ें हैं। आपके पास अपना डिसीजन मेकिंग है,
आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी है। फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में फ़र्क है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मीन्स आपके पास पैसा अपना आ रहा है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि आपको अपना पैसा संभालना आना चाहिए। लोग क्या करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, इंडिपेंडेंट है, उठा के अपने हस्बैंड को दे देते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम इसको इन्वेस्ट करो, तुम उसको बैंक में डालो, तुम उसको संभालो, जो भी इस पैसे के साथ करना है। लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि तुम्हें अपने पैसे को संभालना आना चाहिए। Very true. अगर तुम्हें अपना पैसा संभालना आ रहा है और तुम्हें अपने डिसीजंस खुद लेने की हिम्मत है, ताकत है, पावर है, और तुम्हें अपने आप की सेफ स्पेस, वेदर इट इज वर्क प्लेस और इट इज योर होम, यू नीड टू बी सेफ। ये 3 चीज़ें अगर आपकी कवर है तो आप सेलिब्रेट करिए, पार्टी करिए, वॉट एवर यू वॉन्ट। लेकिन अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं, देन वर्क टुवर्ड्स देम, नॉट सेलिब्रेट, वर्क टुवर्ड्स देम। Wow, very nice. Anything else that you want to say before going to all the women out there who just are feeling independent right now? देखो, मैं तो 2 चीज़ें बता सकती हूँ। नंबर 1 कि अपना डिसीजन कभी मत किसी को दे दो। योर डिसीजन नीड्स टू बी योर डिसीजन। No one should be given the permission to interfere in your decision. You can listen to everyone. You can listen to suggestions. You can ask for suggestions. But ultimately, you need the power to decide for yourself. That is for all the women, all the ages. फिर है दूसरा, जो हम थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। यंगर विमेन, आई थिंक यंगर विमेन बहुत जूझ रही है गिल्ट से। अगर वो काम करती है तो उसको गिल्ट होता है कि मेरे बच्चे, मेरा फैमिली को मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। और अगर वो घर में रहती है तो उसको ये गिल्ट होता है कि वो देखो बाहर इतना दुनिया है, मैं यहाँ फंसी पड़ी हूँ। तो दोनों को कुछ ना कुछ मन में चलता रहता है, जो उनको प्रेशर क्रिएट करता है। उनको अंदर ही अंदर सोचना, दिमाग अपना खराब कर लेना वाला सिचुएशन में ले आता है। उनके लिए ये एडवाइस है कि देयर इज़ नो नीड टू हैव गिल्ट फॉर एनीथिंग। इफ़ यू आर वर्किंग, इट इज़ एज्यूम्ड कि आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे बच्चों को, फैमिली को, जितना एक हाउसवाइफ दे पाएंगी। इट्स एज्यूम्ड, बट you are doing something which is great for yourself, for your family, and for workplace, everywhere you are doing great. अगर आप हाउसवाइफ है तो it's your decision to be a housewife. You are also doing great. Don't get into this thing कि हाय वो तो काम करने वाला तो बहुत अच्छा है मेरे से। नहीं, वो नहीं अच्छा है। उसने अपना डिसीजन ले लिया, आपने अपना डिसीजन ले लिया। सो डिसीजन लेने पे मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। दिस इज़ फॉर द यंगर वीमेन कि अपने आप को उतना ही ध्यान दे दो जितना अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हो, अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हो। आई एम नॉट सेइंग सेल्फ केयर मीन्स अपने आप को पैम्पर करो। सेल्फ केयर मीन्स अपने आप की एस्पिरेशंस, अपने आप की ज़रूरतें, इनको नेग्लेक्ट मत करो। और जो ओल्डर विमेन हैं who don't have this responsibility of घर, बच्चे, work, who are little relaxed in life, उनके लिए क्लियर है कि अपने डिसीजंस खुद ले लो, किसी पे मत छोड़ो। वेदर वो पैसा है, वो आपका लाइफस्टाइल है, या
वो आपकी चाहते हैं। तीनों तुम्हारी मर्जी से चलने चाहिए। आई एम नेवर सेइंग कि तुम लड़ो, झंडा खड़ा करो, क्योंकि आज की डेट में विमेन एम्पावरमेंट का मीनिंग है झंडा खड़ा करो। और अननेसेसरली हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये एग्रेसिव बना रहे हैं इस बात के लिए कि विमेन एम्पावरमेंट, झंडा खड़ा करो। नो, यू डोंट नीड दैट। यू जस्ट नीड a good decision for yourself, a good lifestyle for yourself, and a good thought for yourself. Thought is actually more important. एग्रेसिव बनाने की अपने बच्चों को ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन हम आज की डेट में देख रहे हैं कि नई जनरेशन फजूल में एग्रेसिव हो रही है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अपने बच्चों को आप इतना अच्छा बना लो कि उनको एग्रेसिव होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो लड़ने के बगैर भी दिखा सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ये जो एम्पावरमेंट की बातें हम कर रहे हैं, मुझे तो ये बेसिक ही गलत लगता है। दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। बस अब ये मत बोलो ना कि तुम्हें हम एम्पावर कर रहे हैं, ये बोलो कि तुम अपनी कैपेसिटी, अपना स्किल, अपने थॉट को और बढ़ा लो। बस दैट्स ग्रोथ। Yes. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for a detailed message for all the women out there, for all the ages, whether it's a younger woman, older woman, or a middle-aged woman. It was really great having you here. And a happy Women's Day to each and every woman out there. Be empowered and empower other women as well. #women supporting women. Thank you so much.